खुदा के दरिए की. How do you know that this river belongs to God? It is full of water. पानी से भरा है, खुशी से भरा, तसल्ली से भरा है. खुदा के दरिए की पहचान. मेरी दुआ यह है कि आपके पानी, आसमानी पानी और खुदा के कलाम के पानी के आपके अंदर होने के वसीले से लोग आपको खुदा का नबी, खुदा का शख्स, खुदा की बिटिया, खुदा की माँ या खुदा के लोग कहे और पहचाने इन तमाम चीज़ों से कि आप भरे हैं. आपको याद आ रहा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि जो पानी मैं तुझे पीने को दूंगा वो तू पिएगी, मजा आ जाएगा, फिर जब कभी आएगी फिर दूंगा, और फिर कभी आएगी फिर दूंगा. मैं बराबर देता रहूंगा. हर संडे आना, हर थर्सडे आना और पानी पीते जाना और फिर आना. उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा जो पानी मैं तुझे पीने को दूंगा वो तेरे अंदर से एक सोता बन के, ना खाली बने, सोता बन के हमेशा की जिंदगी के लिए उमड़ता रहे. The water that I'm going to give you, it will become a fountain from you and it will continue to flow for what? Everlasting life. What God's intention for you and for me is not only this morning but forever, since the time you came to the Lord, is to make you a fountain of the living water that will go to people around you far and near and make you blessing in your house and elsewhere where you go. खुदा की मर्जी है कलीसिया. मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो काम खुदा ने तुम्हारे वसीले से गुज़िश्ता अय्याम में किया, आइंदा ज़माने में खुदा बाप इससे कहीं ज़्यादा करने जा रहा है. Let every word flow from your mouth and bless people. Let every deed that goes out of you flows and blesses people, and let the company of people that is around you be blessed and glorify the name of the Lord Jesus Christ. खुदा का जला और खुदा का नाम आपके वसीले से जलाल पाए, वो सोता बन के हमेशा की जिंदगी के लिए उमड़ता रहेगा. कह दिया, कहानी खत्म हो गई. खत्म नहीं हुई, कहानी तो भी बाकी है. क्या उसके बाद क्या हुआ आपको अच्छी तरह से मालूम है. उसके बाद से सारे शहर के लोग यीशु मसीह के पास आ गए और यीशु मसीह से वो पानी पीने लगे, सेटिस्फाइड होने लगे. I am so thrilled that you are in the church, and you are in the church for the last 30, 40, or 50 years. That's a wonderful thing, but not satisfied. The purpose of God for your life is to go and influence somebody and give somebody the eternal life, eternal water. मेरा दरिया पानी से भरा है. खुदा आपको अपने पानी से ऐसा भरा रखे, अपनी खुशी से ऐसा भरा रखे कि आपको देख करके लोग आसमान के खुदा की तारीफ करें. मैं चाहूंगा कि ये वाली आयत पढ़िए, ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत, Psalm 16 verse 11. And somebody, if you can take out normal English Bible also, we will read after this in English also. 16:11, 16 बाब उसकी 11वीं. जी, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा. तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा. How do people know that I have seen the way of life? तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा. लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जिंदगी की राह है, and I'm walking on that path, on that road. My house, my life, my church is going on the path that he has prepared. तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा. आगे सुनिएगा. तेरे हुजूर में, तेरे हुजूर, जब मैं तेरे हुजूर रहूंगा, how do people know that I stand before God and I am in the company of the Lord? He's with me. वो मेरे साथ है. तेरे हुजूर कामिल शादमानी है. कामिल शादमानी है. अब अंग्रेजी में पढ़ी है, क्या लिखा? अंग्रेजी में ऐसा लिखा. जी सुनिएगा. You will show me the path of life. You will show me the path of life.
In your In presence your presence is fullness of joy. is Fullness of joy. halfness or little bit. No. In your presence is the fullness of joy. खुदा का दरिया पानी से भरा भरा है. Wow, church. There is no reason for you to say, I am empty, I don't have it, I'm not enjoying. I don't know, for some reason I came to the church, but I didn't enjoy. It does not depend on any person. It depends your personal relation. If you're related to God, if you belong to God, if you're the river of God, you have to be full of water. Hallelujah. Wow. तेरे हुजूर कामिल शादमानी है. There is nothing lacking. Could I ask you to read another scripture, Psalm 84 verse 4, which we have seen many, many times, but it won't hurt you if you read once more. Psalm 84 verse 4. मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं. मुबारक हैं वो जो तेरे घर में घर रहते हैं. में जाते वाले नहीं. चर्च नहीं जाना चाहिए. मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, चर्च नहीं जाना चाहिए. चर्च में रहना चाहिए. Don't go to church. Don't go to church. I told you before, I'm telling you again, don't go to church. Stay in church. Live in church. And you read the whole word. आप पूरे कलाम पढ़िए, उसमें कई टेम्पररी चर्च गोअर के बारे में लिखा है. रहते हैं जो खुदा के घर में रहते हैं. दाऊद ने ये चीज एक्सपीरियंस की. गॉड सेड, I've got a man after my own heart. मुझे अपने दिल के मुताबिक शख्स मुझे मिल गया है. तब उसके बाद कहने लगा, अगर मैं आसमानों में चला जाऊं तो तू वहां है. अगर मैं समुंदर की इंतहा में चला जाऊं तो तू वहां भी है. He experienced the thing because my heart is linked with God. I never have the absence of my God. He's always there. I am covered by him. खुदा का दरिया पानी से भरा है. जी, आधी आयत पढ़ी थी हमने जी. मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं. वो जो तेरे घर में रहते. हाउ डू यू नो देम? कैसे पहचानते हैं आप उनको? इंटरव्यू लेने वाला जब इंटरव्यू लेगा तो क्या कहेगा, क्या चीज पता करेगा? सुनिएगा, मुबारक हैं जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा वो हमेशा तेरी तारीफ करेंगे. वो तेरी तारीफ करेंगे. The thankfulness and the praises that comes from our lips are the sure proof that he is in us. तारीफ खाली तब नहीं जब कुछ मिले. हम जब खुदा के हुजूर आते हैं तो खुदा की किस चीज़ के लिए तारीफ करें? मैं सोचता हूँ कि वर्शिपर्स ने ये बात सीख ली. जब खुदा के हुजूर आते हैं तो हम सोच सोच के इसकी तारीफ ना करें. खुदा बाप तूने ज़मीन का काम कर दिया, मकान मेरा बनना शुरू हो गया, गाड़ी हमारी आ गई, लड़के का एडमिशन हो गया, पापा का वीज़ा हो गया, इसलिए हम खुदा तेरी तारीफ करें. नहीं, हम खुदा की तारीफ करें. स्कूल ऑफ वर्शिप ये लोग पढ़ाते हैं, वी प्रेज गॉड for what he is. What he is. और वो उस तारीफ के बारे में दाऊद ने कहा है कि हमें करने की जरूरत नहीं होता है, पर कहने लगा कि उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी. Even if I don't, कई चीजें होती है ना कि आप, अरे क्या पता हम नहीं कहना मांग रहे थे, निकल गया, जुबान पर थी. खुदा करे कि खुदा की बातें और खुदा की बड़ाई और खुदा की तारीफ अगर आप नहीं भी करना मांगे तो आपकी जुबान से निकल जाए. ऐसा दरिया बन जाए जो पानी से भरा हो. अब ये वाली सुनिएगा आयत 52 ज़बूर उसकी 8वीं आयत. पिछली दफा शानू भाई ने ये वाली आयत को खूब अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था. इसमें ढेर सारा मसाला है. 52 ज़बूर उसकी 8वीं आयत है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं खुदा के घर में, लेकिन
ये वर्ड लेकिन से शुरू हुआ है। लेकिन वर्ड के मतलब पिछला वाला किस्सा फर्क है। पिछला वाला किस्सा फर्क है। वो बदमाश हैं, वो चोर हैं, वो झूठी बातें कहते हैं, वो बुराई करते हैं, वो दांत के बदले दांत, थप्पड़ के बदले थप्पड़ देते हैं। ये सब दुनिया का तरीका है। पर काश कि मैं और आप दाऊद की तरह ये लेकिन वर्ड जोड़ सके। नो मैटर व्हाट्स हैपन, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा इसमें जो जो चीजें हो रही हैं, और वो बयान कर रहा पहली आयत से लेकर चढ़ी आयत तक क्या क्या दुनिया में हो रहा है। शरीर लोग कैसे हैं, कैसे उन्होंने दगा करी, कैसे वो घात में लगे रहते हैं, परेशान करते हैं। पर इन तमाम चीजों के बावजूद भी फाइनल डिसीजन दैट ही इज गिविंग इज ए बट आई एम लाइक अ ग्रीन ऑलिव ट्री इन द हाउस ऑफ गॉड। इन द हाउस ऑफ गॉड। मैं जब पढ़ रहा था कि ये मैं खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूँ। हरा दरख्त जब निचोड़ा जाता है तो उसमें से तेल निकलता है। हरा दरख्त जब निचोड़ा जाता है, आप शायद अपने आप को हरा दरख्त कहेंगे, आपके अंदर तेल है पर किसी के काम का नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका तेल किसी का काम का हो जाए, अलाउ गॉड टू स्क्वीज यू। Allow God to squeeze you because He needs the oil, and that oil will cause the lamp to continue to burn in the house of God. इस खुदा के घर में, खुदा के काम में, खुदा की बादशाहत में अगर आपने कह दिया खुदा बाप मैं तेल से भरा हूं, पर खुदा बाप मुझ में से तेल निकाल करके अपना काम, अपनी खिदमत, अपनी रोशनी को कर। I know all of us are full of oil, but allow God to squeeze us. मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे में ये देखा है कि आप खुदा को डिक्टेशन देते रहिए। अपना पूरा दिन उसे बता दीजिए कि 10 बजे निकलूंगा, 12 बजे ये करूंगा, 2 बजे ये करूंगा, कल ये करना, अगले महीने ये करना, सब आप डिक्टेशन दे दीजिए। आपकी जिंदगी में आसमान कहीं नहीं दिखाई देगा। पर अगर आप खड़े होकर के कह दिए खुदा बाप जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, तब वो हर एक चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक करके आपको अपने घर में रोशनी बर्पा करने और रोशनी देने का वसीला बनाएगा। सुनिएगा, रोशनी सबसे ज्यादा कब दिखाई देती है? जब अंधेरा ज्यादा हो। इस अंधेरे को जो आपके चौगिर्द है, ये गंदी बातें जो कर रहे हैं लोग, या लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, या आपके हालात आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपकी बीमारी आपको तकलीफ दे रही है, इन तमाम चीज़ों से आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा, जितना अंधेरा बढ़ेगा, उतनी रोशनी ज्यादा काम करेगी। कोई पूछ रहा था कि क्या जरूरत थी उसको कैद खाने में ले जाने की, क्या जरूरत थी उसको कैद खाने में ले जाने की। और लेकिन कैद खाने में रोशनी चमक रही थी, क्योंकि कैद खाने में जाकर के वो नौकरी नहीं कर रहा था, पर लिखा वो कैदियों के ऊपर दरोगा बना दिया गया था वहां पर। फर्स्ट लीडरशिप that God is going to give you in your hand, the first leadership, it's not in Pharaoh's palace. The first leadership God will give you in the prison. If you can be a good leader in the prison, you could be a good leader in Pharaoh's palace. अगर आप कैद खाने में एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, होते कौन है कैद खाने में? कैद खाने में जो मारा पीटी, गाली गुप्तार करने वाले, खून ऊन करने वाले सब कैद खाने में होते हैं, और उनके अच्छे लीडर बन सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत करी। किसकी खिदमत करी? खुदावंद यीशु मसीह ने पैर उसके भी धोए थे जो उसको आगे सलीब दिलवाने वाला या उसको पकड़वाने वाला था, उसके पैर धोए थे। He was a good leader when he led God's people
And he is good leader today when he is sitting on the throne. वो अच्छा लीडर है और वो खुदा हमसे भी चाहता है कि हम एक अच्छे लीडर बने। और अच्छे लीडर की सिर्फ पहचान यही है कि खुदा बाप, आई हैव ऑयल इन मी, आई एम इन योर हाउस, आई अलाउ यू टू टेक दिस ऑयल एंड यूज इट फॉर लाइट इन योर हाउस। अगर मेरे घटने क्या जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े, और किसी तरह से आसमान का खुदा नहीं बढ़ेगा। और दुनिया की हजारों चीज में आप देख लीजिए, जहां कहीं आप घट रहे हैं, जहां आप सॉरी कह रहे हैं, जहां माफी मांग रहे हैं, जहां माफ कर दे रहे हैं, जहां अपना नुकसान उठा ले रहे हैं, जहां पैसे का ख्याल नहीं कर रहे हैं, इन तमाम चीजों से एक काम हो रहा है कि खुदा बढ़ रहा है। और घूम फिर के लोग कहेंगे हाँ बेशक ये खुदा का बंदा, ये खुदा की बंदी है। चर्च सूखी जमीन बन के और सूखी नदी बन करके आप मत रहिए, पर खुदा को अपना पानी आपके ऊपर भरने दीजिए, और उस खुदा के पानी से पता चलेगा कि आप खुदा की दरिया, खुदा का दरिया पानी से भरा है। साम 92 वर्स 13, 92 ज़बूर की 13वीं आयत, 92 ज़बूर की 13वीं आयत, जहां कुछ इस तरह से लिखा है जी, जो खुदावन के घर में लगाए गए जो हैं, खुदावन के घर में जाते हैं, लगाए या गए, खुदा उनके घर में रखे हैं, लगाए गए हैं। those that are planted in the house of God. It's very important for us to be planted. जो खुदा के घर में लगाए गए हैं, मट्टी खोद करके उसमें बोए गए, जो खुदा के घर में लगाए गए हैं। आप पवित्र आत्मा से बात करते वक्त उसे इजाजत दीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे खुदा के घर में लगा। होली स्पिरिट, आई गिव यू परमिशन टू प्लांट मी इन योर हाउस, एंड इट हैज टू स्टे देयर। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो आगे लिखा है, इट हैज टू स्टे देयर एंड इट हैज टू कंटिन्यू टू ग्रो। लेकिन जो खुदा के घर में लगाए गए हैं, वो हमारे खुदा की बारगाहों में, हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। इन द हाउस ऑफ गॉड, इन द कोर्ट ऑफ गॉड, सरसब्ज होंगे, बढ़ेंगे। टेम्परेरी गोइंग एंड विजिटिंग द चर्च does not make you a fruitful Christian, but is staying in the plan of God, is staying in the house of God. एक आदमी कह रहा है मुझे तो खबर नहीं थी कि खुदा यहां है, पर खुदा यहां है। मैं झूठ बोल करके, दगा दे करके, ठग करके बाप को घर से रात में निकाला गया, but I had no idea कि खुदा यहां पर है। He's chasing me. Not only he's here, सिर्फ खुदा यहाँ है नहीं, पर उसने इस जंगल में एक सीढ़ी लगा रखी जिससे मैं आसमान तक जा सकता हूँ। तो मुझे बताने दीजिए, आपसे हो सकता है कोई खता हो गई, आपसे हो सकता है कोई गलती हो गई, हो सकता है किसी को आपने चीट कर दिया, बट बिकॉज यू आर अनॉइंटेड वन, यू हैव गिवन योर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट, अलाउ गॉड to make your eyes see him in the wilderness where you least expected that God will be there. In your situation, जहां बिल्कुल अकेले हैं, जहां कल के बारे में आप सोच रहे हैं क्या होगा, पता नहीं मामा मुझे कबूल करेंगे नहीं करेंगे, खाऊंगा क्या, कैसे लौटूंगा, जंगल के जानवर मुझे खा ना जाएं। ऐसी सिचुएशन में आपको खुदा कह रहा मैं यहां हूं, मेरी सीढ़ी यहां है, मेरे फरिश्ते यहां है, मेरा वादा यहां है। मुझे मालूम है तू कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू बिल्कुल खाली है, पर मैं अपने दरिये से तुझे आज शराबोर कर देता हूं। Allow God to fill you with His water even when you have done negative things and you facing negative situations. नकारात्मक परिस्थितियों में भी आप कहें खुदा बाप, I want to have you in my life. काश कि हमारे भरे रहने से खुदा का दरिया
पानी से भरा है। क्या लिखा है वो भरे रहने के बारे में? वो तो रोज बोलते हैं ना, क्या लिखा है? किसी को याद है क्या लिखा है? मेरा प्याला लबरेज हो रहा है, उमड़ रहा है। ये उस हालात में है। एक बात बताना मांगता हूं, जब आप खुदा के हुजूरी का एहसास या खुदा के हुजूरी का जिक्र या खुदा के नजदीक की बातें या खुदा के तेल की बातें करें, तो उस वक्त जिस्मानी हालात, पैसा, रुपया, गाड़ी, घर, इसका कोई वास्ता नहीं है। इसका सिर्फ खुदा से वास्ता है, क्योंकि खुदा का, जैसे अमेरिका का $1 यहां के 86 रुपए के बराबर है। कुवैत का एक कुवैती दीनार 165 रुपए के बराबर है। हमारे आसमान के खुदा का ₹1 1 अरब रुपए से भी ज्यादा बढ़ करके है। Let that joy, let that peace, and let that understanding of heaven be imparted in you so much that you continue to let people be blessed through you, through the water that your God has given you. अपने खुदा से कहिए, खुदा बाप मैं पानी से भरा रहूं, जहां कहीं जाऊं, लोग आपके घर में समय बिताने के लिए आए, आपको कॉल करें कि 2 घंटे में आपके साथ बैठ जाएं, हम आपके आते हैं, हमको ऐसा लगता है जन्नत में गए। और हम दुआ कर रहे हैं कि खुदा बाप से कि सुजानपुरा कलीसिया ये इस दुनिया में जन्नत बने। लोग आपको देखकर आपसे बात करके खुदा के जाने हैं और कहिए, खुदा बाप मुझे अपने पानी से भरा रख। वो लिखा है इसी 9वीं आयत में, पहले हिस्से में, तो जमीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। क्या? जमीन। जहां का वर्ड जमीन है, उसके मुराद आदमी से, मुझसे और आपसे जमीन। वो हम पर तवज्जो करके हमको सैराब करता है। फिर आखिरी हिस्से में लिखा है, जब तू जमीन को यूं तैयार कर लेता है तो उसके लिए अनाज मुहैया करता है। He's preparing a heart, he's preparing a mind, he's preparing a life to allow us to be fruitful and allow us to let the waters of heaven flow through us and not be empty. May the Lord continue to bless you. Shall we pray? दुआ करें। प्यारे खुदावन, तो जो जिंदा है, मुअतबर है, हर एक दुधारी तलवार से तेज तेरी बातें हैं। आज सुबह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ करते हैं कि खुदावन हम में से कोई खाली दरिया ना हो, बल्कि तेरे पानी से लबरेज रहे। हम में से कोई खाली प्याला ना हो, बल्कि तेरे रूह से लबरेज रहे। हमें से कोई खाली इंसान ना हो, पर हमारे अंदर जिंदा पानी की नदियां बहें। हम पर रहम कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।